Students, we are now going to discuss Ohm's law. This is my third video on current electricity. तो ये ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं. ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमको बोलना है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, हम देखेंगे. अब ओम्स लॉ ने एक रिलेशन बताया है काय में, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. तो उसका कहना क्या है, व्हाट सेज ओम, व्हेन द स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट. State of the conductor is constant means what? State constant means temperature constant, length, area, cross section area ये भी constant हो, और उसका temperature constant हो, तो उसका कहना क्या है, the current flow in the circuit is directly proportional to the potential difference. What I am saying? The current flows in the circuit is directly proportional to the potential difference. Means if I is a current and directly proportional to the current flows in the circuit is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor. कंडक्टर में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के. Means I is directly proportional to V. Means I equal to KV. And V equal to, यदि K इधर आते, ये proportionality constant है, K is a proportionality constant, तो V equal to 1 upon K I. And 1 upon K means R. 1 upon K means R. 1 upon K equal to R, and R is a resistance. R क्या है ये, resistance. Resistance in the circuit, and R यदि निकालना है तो क्या करेंगे हम, V upon I. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ रेशियो. काय का रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस in the circuit and to the current flows in the conductor. Potential difference to the current flows in the conductor. तो ये होता है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V upon I, it is the ratio of potential difference and current flows in the conductor. तो क्या बताया मैंने, ओम्स लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड current and potential difference. Current is directly proportional to volt, means potential difference. K is a constant of proportionality. When we bring K here, it becomes 1 upon K. 1 upon K equal to R. R is a resistance. तो ये है हमारा V equal to IR. V equal to IR. I is the current flows in the circuit. V is the potential difference between two ends, and R is the resistance in the conductor. तो इसके बाद ये समझ में है, दिस इज अ क्या है, ये ओम्स लॉ हो गया. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी. Now we are going to discuss on resistivity. अब देखो, resistance is depending on the material, length of the material and cross section of the material. हम क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस हो गया, अब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं. तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जब हम देखते हैं तो पहले हमें रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा. तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ. यदि हम
50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस गिनेंगे, और यदि कंडक्टर की लेंथ हम 100 मीटर कर देते हैं तो रेजिस्टेंस वहां डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है रेजिस्टेंस? व्हेन कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं काय में? कंडक्टर में। इट कोलाइड्स विद द आयन, ड्यू टू दैट कोलिजन it resists to the flow of current. क्या होता है? We have seen before that. What we have seen? Current is nothing but the flow of electrons. When electron flows in the conductor, the ions in that conductor and electrons both are collide to each other. Due to collision, the conductor becomes hot. Heat is created there. And due to collision, what happened? It resists to flow the current. अब ये करंट फ्लो में क्या करता है? एक बाधा निर्माण करता है। It resists. That is the resistance. अब ये रेजिस्टेंस समझने के बाद हम रेजिस्टिविटी जब पढ़ते हैं तो मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ यदि ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, यदि लेंथ कम है तो उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा। मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर लेंथ है कंडक्टर की, उसमें जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे डबल 20 मीटर में रहेगा, 30 मीटर में 3 गुना रहेगा, 40 मीटर में जो 10 मीटर में उससे 4 टाइम्स रहेगा। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि एरिया, यदि कंडक्टर की मोटाई यदि ज्यादा है तो देखो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया में रेजिस्टेंस कम होता है। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा उतना रेजिस्टेंस उसमें कम रहेगा। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा? रेजिस्टेंस उसमें कम रहेगा। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज लेस देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो लेस। तो क्या होता है? ये resistance is inversely proportional to the cross section area of the conductor. कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया 4 cm स्क्वायर है, तो मान लो वहां जो रेजिस्टेंस है यदि 8 cm स्क्वायर यदि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वहां रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस is inversely proportional to the cross section area of the conductor. यदि हम दोनों को मिला ले तो क्या बनेगा हमारा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस length of the conductor and inversely proportional to the cross section area. अभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लेते हैं रो। क्या लेते हैं हम? रो। ये होता है रो L, एंड दिस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इस रो को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी। या रो निकालने को बोला, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने को बोला, तो क्या हो जाएगा? R multiplied by A upon L. Means L is the length of conductor, A is the area of conductor, and R is the resistance. So resistivity is depending on the material. What kind of material? जैसे डायमंड की रेजिस्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है ना। कॉपर, सिल्वर, इनकी रेजिस्टिविटी क्या है? कम है। तो ये रेजिस्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन मटेरियल। कौन से मटेरियल पे डिपेंड होती है? क्या? रेजिस्टिविटी। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। हमने कितनी बातें पढ़े अभी? 2। एक ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, सेकंड है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी
क्या है, R इक्वल टू रो, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, L अपॉन L, L अपॉन A, L मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A मीन्स एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इसके बाद हम देखते हैं सर्किट, सर्किट एंड कंपोनेंट्स जो वहां इस्तेमाल होते हैं। सर्किट, सर्किट क्या होता है, व्हाट इज अ सर्किट? सर्किट क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट कनेक्शन ऑफ द कंडक्टर with electrical devices and it is a closed, means current flows in the circuit with connection, with connecting all devices, उसे हम सर्किट कहते हैं। जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्ट करने, किससे कनेक्ट करना है, कंडक्टिंग वायर से। व्हेन कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड to the devices, then it becomes circuit and current flows through it, it becomes circuit। तो एक हाथ यदि एग्जांपल दे तो क्या है, यदि हम यहाँ ये सेल है, दिस इज अ एमीटर है ना, हियर इज अ रजिस्टर एंड यहाँ है वोल्ट मीटर, ये इस प्रकार का क्या हो जाता है, दिस इज सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्किट। सर्किट मीन्स का क्या क्या, ये सेल है, एमीटर है, की है एंड दिस इज अ वोल्ट मीटर। तो हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्किट क्या होता है, सर्किट इज अ कनेक्टिंग बाय यूजिंग, कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बाय कंडक्टिंग वायर एंड ड्यू टू विच करंट फ्लोज इन इट, दैट इज इट बिकम सर्किट, इट बिकम सर्किट। सर्किट के बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में आता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ये क्या है, सेल है, सेल का सिंबल क्या है, सेल, इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यदि देना है सर्किट में तो क्या लगाना पड़ता है, सेल। यदि एक से ज्यादा सेल इस्तेमाल होती है तो उसे इस सिंबल से दर्शाया जाता है ना। दिस इज ऑल्सो सेल, दिस इज ऑल्सो सेल, दिस सेल is providing the potential difference in circuit. If you want more potential difference, then we use more than one cell, more than one cell। यदि ऐसी है तो इसको बोलते हैं ओपन की। ओपन की मीन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग। यदि इसी को ऐसा दर्शाए तो दिस इज अ क्लोज्ड, क्लोज्ड की। क्या है ये की है ना। ये क्या है, बैटरी। बैटरी मीन्स मोर देन वन सेल, दिस सेल, this is a key, this is open key, this is a closed key। when key is closed, current is flows in the circuit। and again this is a resistor, इसे क्या कहते हैं हम, resistor। इस resist the flow of current। और यदि घटाना बढ़ाना है हमें resistor, रेजिस्टेंस यदि हमें घटाना बढ़ाना है तो क्या लगाना पड़ता है, वेरिएबल रेजिस्टर। इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, है ना। ये हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टर। इससे क्या है, यदि कम करना है ज्यादा करना है रेजिस्टेंस सर्किट में तो वेरिएबल रेजिस्टर लगाते हैं। और ये है वोल्टमीटर। Voltmeter is used to measure the potential difference in the circuit।
क्या है, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल क्या होता है, क्यों होता है? इट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। और ऐसा ही यदि यहाँ पे ये लिखा है तो दिस इज अ एमीटर। एमीटर मीन्स टू मेजर द करंट फ्लोज इन द सर्किट। आई बात समझ में? तो क्या हमने क्या पढ़े, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बाद सर्किट। सर्किट इज अ क्या है, कनेक्टिंग वायर्स, connected the electric devices by connecting wire, it become circuit। इसे हम सर्किट कहते हैं और करंट फ्लोज थ्रू इट। और इसके बाद हम पढ़े उसके कंपोनेंट्स, which components to be used for the circuit। अब इसके बाद हमने रेजिस्टेंस देखा है। यदि वन रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, क्योंकि ओम ने इसे ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस देखा है कि करंट को अपोज करने वाला जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्ट टू फ्लो द करंट एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सिंबॉलिकली ऐसा लिखते हैं इसे क्या कहते हैं, ओम। अब रेजिस्टिविटी भी देखा हमने। रेजिस्टिविटी क्या है, हमने देखा ना, क्या है, R इक्वल टू रो एल ए, मीन्स रो इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन एल। तो R का तो मालूम है हमें क्या है, ओम। ए मीन्स मीटर स्क्वायर, यदि मीटर में है तो, और लेंथ तो मीटर में होती है, 1 मीटर कट गया तो हमें क्या मिलता है, ओम मीटर। द यूनिट रेजिस्टिविटी मेजर्ड बाय ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। एंड रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वोल्ट। एंड करंट का क्या है, एम्पियर। करंट काय में मेजर किया जाता है, एम्पियर। करंट मेजर इन एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन वोल्ट। तो ये हमें यूनिट भी ध्यान में होना है ना। किसी ने पूछा करंट काय में गिना जाता है, काय में गिनते हैं, एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में। रेजिस्टिविटी ओम मीटर, रेजिस्टेंस ओम, है ना। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, ये सारे यूनिट्स हमें मालूम होना। अब हमने देखा पहले क्या, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अब यदि 1 ओम की बात करते हैं रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। और ये क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, है ना। 1 ओम की डेफिनेशन यदि हमें बोलना है तो इससे हम बोल सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द कंडक्टर, क्या बोला मैंने, when 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर and potential difference between these two ends of the conductor 1 volt, then the resistance in that conductor is 1 ohm। क्या बोला मैंने, when 1 ampere current flows through the conductor, the potential difference between two ends of the conductor is 1 volt, then resistance in that conductor is 1 ohm। This is the definition of 1 ohm। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
अब इसके बाद का है जो हम बाद में करेंगे।